Uh, in this class, we are learning about the first topic of your subject, that is mobile computing. First thing that we are going to see is the definition of mobile computing. What is mobile computing? It is nothing but a technology that will allow you for transmission of your data, voice, and video. Everybody knows that we use mobile phones. Either we use mobile phones for transmitting our data, like whatever information we are having, we pass on from one person to another person, either in form of data, either in form of audio. ऑडियो के थ्रू हम वॉइस मैसेज के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, या वीडियोस के थ्रू भी ट्रांसफर आर इन्फॉर्मेशन from one computer device or from one mobile device to another mobile device. It can be a fixed device also, or it can be a mobile device also, or any other wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. मतलब जैसे मोबाइल फोन, सभी लोग मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, और यू आर यूजिंग लैपटॉप, एनीथिंग, इट इज नॉट हैविंग एनी वायर्स. सबसे बेसिक चीज जब मोबाइल कंप्यूटिंग कर रहे हैं हम, तो यू शुड नो दैट अ डिवाइस which can communicate without having wires in it, ऐसा कुछ आपको वायर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है. पहले के टाइम में वी जब स्टार्ट हुआ था, we used to have cables. All the cables are there, and then things are attached. आपकी सारी computing devices, जो भी चीजें थी सारी connected थी, and then communication used to happen. So in wireless thing, you're not having any wires नहीं होते हैं, but still it is possible for transmitting your data. That is the basic definition of mobile computing. I am again repeating. It is a technology which will be allowing you for transmission of your audio, data, as well as video via a computer. You can do computers भी आपके आते हैं, wireless computers आते हैं, or any other wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. That is the definition of your mobile computing. Then what is this mobile communication? अभी हमने mobile computing देख लिया, अब we will see what is this mobile communication. जब हम communication कर रहे हैं, communication का मतलब क्या होता है? Exchange of information. सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, मतलब एक्सचेंज करना कोई भी इंफॉर्मेशन, इमेज के फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, एनी मीडिया, एनी फॉर्म में हो, आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन. एंड मोबाइल मतलब मूविंग. मोबाइल का ही मतलब होता है मूविंग. आप देखो, मोबाइल के साथ आप घूम वॉक करके आप बात करते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही जगह खड़े होकर कम्युनिकेशन करना है. नो, you can move freely anywhere and you can communicate also. So mobile means moving device, but having communication possible. That is the basic thing about your mobile communication. Refers to the infrastructure which is put in place to ensure that seamless and reliable communication goes on. These would include devices such as protocols, services, bandwidth, portals, which is necessary to facilitate and support the stated services. That is about your mobile communication. मतलब आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज में यू आर हैविंग लैब्स अवेलेबल इन विच ऑल द पीसेस आर कनेक्टेड. दे आर हैविंग वायर्ड कनेक्शन अवेलेबल है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट थ्रू वायर्ड मीडिया. बट अगर मोबाइल डिवाइस है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट सभी के पास अगर मोबाइल डिवाइसेस है, तो आप कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे. जरूरी है कि एक ही जगह पे आपको बैठने की जरूरत नहीं, आप कहीं पर भी हो सकते हो. यू कैन हैव कम्युनिकेशन. जैसे कि सपोज यू आर डूइंग कॉन्फ्रेंस कॉल, हर पर्सन अपनी अपनी जगह पे है, अपने अपने प्लेसेस पे है, बट स्टिल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. They are not requiring any infrastructure for having communication established. So that is about your mobile communication. Then next thing that you have to learn is different types of mobility. Mobility के types क्या है आपके पास? Two types है mobility के. Mobility, I have clearly told you what is mobility. Moving devices. So what is this different types you are having? It may be asked in your MCQs also, so you should be aware what is this mobility. First thing that comes in the category of mobility is user mobility, जहाँ पे यूजर मूव कर रहा है. जैसे कि आप अभी अगर कहीं पे होंगे, इफ यू आर मूविंग, आप अगर मूव कर रहे हो, सो
आपका डिवाइस भी मूव कर रहा है। आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है, तो अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका मोबाइल फोन भी मूव कर रहा है एंड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक जगह पे बैठे होंगे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है और आप वो जगह से उठ गए मतलब कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ यू आर मूविंग along with your device, then also communication is possible. So that is the first thing, user mobility and device portability. What is this device portability? That we are going to see up here with the help of definitions also. First thing about that comes in your user mobility is it refers to a user who has access to same or similar telecommunication services at different places. That is, user can be mobile. User can be mobile. इट इज नॉट कि यूजर ही मोबाइल है। यूजर मतलब यूजर मूव कर रहा है। सपोज कर लो XYZ कोई भी यूजर है। सपोज वी हैव कोमल, शी इज मूविंग, शी इज नॉट एट द वन प्लेस, शी इज मूविंग। जैसे मूव कर रहे हैं अलॉन्ग विथ मोबाइल फोन, शी इज मूविंग एंड अलॉन्ग विथ मोबाइल फोन शी इज मूविंग। सो वट एवर सर्विसेज शी इज यूजिंग एट वन प्लेस, सर्विस मतलब एक अगर कॉल कर रहे हैं, इफ शी इज कॉलिंग एट वन प्लेस and if she wants to move from one room to another room, so कॉल स्टॉप हो जाएगा कि जैसे एक रूम में आप दूसरे रूम में शिफ्ट हुए तो कॉल कट नहीं होता है। अगर कॉल शुरू है आपका तो कॉल वन फर्स्ट रूम में था वहां पे भी चालू रहेगा, सेकेंड रूम में अगर जाते हो तभी भी आपका कॉल शुरू रहेगा। so that is about your user mobility where user is moving as well as the services he is using। services मतलब आप कॉलिंग की सर्विस यूज कर रहे हो, आप मैसेजिंग की सर्विसेज यूज कर रहे हो, आप डेटा ट्रांसफर की सर्विस यूज कर रहे हो, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, या आप वीडियो ट्रांसफर कर रहे हो, इमेज ट्रांसफर कर रहे हो, ऑडियो ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज। या आपने जैसे आप पैक लेते हो, आप जब रिचार्ज करते हो तो डिफरेंट पैक्स आते हैं, आपको टॉपअप करना है, आपको इंटरनेट पैक चाहिए, आपको स्पेशल पैक चाहिए, वीकली पैक चाहिए, डे पैक चाहिए, नाइट पैक चाहिए, जो भी आप डिफरेंट सर्विसेज आपको एक्वायर करनी है, यू कैन डू दैट थिंग। आपको कोई स्पेशल लाइक कॉलर ट्यून की सर्विसेज चाहिए या एनी सर्विसेज दैट यू वांट टू डू, दैट कम्स इन योर सर्विसेज कैटेगरी। इट इज नॉट लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, लाइक आपने जितना पे किया है वही सर्विसेज आपको मिलेंगे। आपने 28 डेज का रिचार्ज किया था, 28 डेज आपको सर्विसेज मिलेंगी। उसमें कॉलिंग की सर्विसेज है कि मैसेजिंग की सर्विसेज है, फ्री रहेगा या कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए आपको चार्ज कर देना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग बेस्ड ऑन योर convenience you acquire your plans। so that is about your user mobility। what are the different examples available? simple call forwarding comes in, जैसे कि अभी हमने बताया कि आप अगर एक प्लेस पे बात कर रहे हो, चलते चलते आप कोई दूसरे एरिया में चले गए तभी भी आपका कॉल चलता रहेगा। जैसे हम अगर गाड़ी पे है, हम अगर एक जगह से शुरू किया कॉल, हमने आप सपोज अपने घर से शुरू किया कॉल और आप कॉलेज तक आते आते अपने कॉल ही शुरू है। ऐसा नहीं है कि आपने जब वहां से शुरू किया था और कॉल कट हो गया, नो। जब तक कि आप एंड नहीं करोगे इट विल बी स्टार्टेड एंड योर कम्युनिकेशन विल बी हैपनिंग। सो दैट इज योर यूजर मोबिलिटी। यूजर मोबाइल है, यूजर घूम रहा है प्लस उसके सर्विसेज भी साथ में चल रही है, दैट इज यूजर मोबिलिटी। example is simple call forwarding solutions from your telephone or computer device, supporting roaming. The desktop looks the same no matter which computer a user uses to log into your network। so that is about your user mobility। and second one is your device portability। दो types है आपके mobility में, एक user mobility और एक device portability। device portability means communication device moves with or without user। Many mechanisms in the network and inside the device have to make sure that communication is still possible when the device is moving। जैसे कि मोबाइल फोन मूव कर रहा है, भले ही वो विथ यूजर मूव कर रहा है, आप यूज कर रहे हो या कोई और उसको यूज कर रहा है, या विदाउट यूजर मूव हो रहा है। आपने कार में रख दिया एंड योर कार इज मूविंग, लाइक यू आर नॉट देयर, आपके डिवाइस के साथ आप नहीं हो, कोई और यूज कर रहा है। so that is also the thing that will cover up in this device portability। typical example is your mobile phone। जैसे कि मोबाइल फोन हर किसी के पास मोबाइल फोन है, आप उसको कहीं लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो, या कोई और आपका डिवाइस यूज कर रहा है, डिवाइस इज मूविंग। डिवाइस पोर्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन डिवाइस इज मूविंग here। the system itself hands a device from one radio transmitter called a base station to next if signal becomes too weak। और आपको ऐसे भी होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल रोमिंग, रोम कर रहे हो आप,
आपने अगर आप महाराष्ट्र से हो, इफ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, और जितनी भी कैपेसिटी रहेंगी आपके, आप सपोज जियो यूज कर रहे हो, जियो के सब्सक्राइबर हो आप, या एयरटेल के हो या आइडिया के हो, जो भी आपके एक्सवाइजेड आपके ऑपरेटर हो, उनके आप अगर ऑपरेटर हो, तो इनकी जितनी लिमिट रहेंगी, सपोज कर लो एयरटेल की जितनी भी लिमिट है, इसमें जितने भी यूजर्स हैं उनको सर्विसेज मिलते रहेंगे। सपोज आप नागपुर एरिया में हो, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, यू आर इनटू नागपुर, एंड सडनली जैसे आप ट्रेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू आर मूविंग फ्रॉम कार ऑल्सो, आप अगर शिफ्ट हो गए हो एक एरिया से टू अनदर एरिया, इफ यू हैव शिफ्टेड टू एमपी, एमपी साइड चले गए आप, एमपी चले गए, भोपाल चले गए, एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, सो आपका सपोज एयरटेल, एयरटेल था आपका यहाँ पे, नागपुर में आपका एयरटेल था, सपोज कर लो, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयरटेल वर्क नहीं करता है, एयरटेल यहाँ पे वर्क नहीं कर, एमपी में एयरटेल वर्क नहीं कर रहा है, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर है, सपोज आइडिया का अच्छा यहाँ पे नेटवर्क है, या आइडिया ऑपरेटर ज्यादा है यहाँ पे, या आइडिया का ज्यादा यूज है, सो इर्रिस्पेक्टिव आप कहीं से भी हो, कोई भी ऑपरेटर के आप यूजर हो, आप अगर शिफ्ट हो रहे हो एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, सो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विसेज ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ऑपरेटर टू योर अनदर ऑपरेटर, फ्रॉम वन ऑपरेटर टू अनदर ऑपरेटर, और जो सर्विसेज आप यहाँ पे यूज कर रहे थे वही चीजें आप यहाँ पे भी यूज कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपका ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सर्विसेज जो मिलेंगी इट विल बी थ्रू आइडिया, नॉट विथ एयरटेल, एयरटेल से नहीं मिलेंगी, आइडिया से मिलेंगी, लेकिन इसके जो चार्जेस रहेंगे, जो इनके चार्जेस रहेंगे वही चार्जेस आप लोग को पे करने होंगे। ऐसे नहीं है कि आपने जो ओल्ड ऑपरेटर से चार्जेस थे वही आपको मिलेंगे, इट मे बी लेस ऑल्सो, इट मे बी मोर ऑल्सो, बट इफ यू वॉन्ट टू यूज uninterrupted services, you have to follow this network operator, that is your idea. This is about device portability, where the device is moving, and in user mobility, in which user is moving, and if he is using any kind of service, if he is doing call, if he is using any message services, anything if he is using, so that is also getting transferred from one place to another place. Yeah. This is all about your types of mobility.